Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture. So I Assistant Professor Priyanka Shirsat is going to take your one of the chapters of the subject, that is genetics and molecular biology. I am going to take the first chapter of the subject, that is the bacterial transformation. Okay, the chapter is named as a transformation, and this chapter is all about the transformation procedure, that is a type of the recombination process that occurs in the bacteria. Okay, we are going to study about it in this chapter. So we will see how the transformation process occurs in the gram positive and gram negative organisms, and how this transformation is used in the genetic mapping. Okay, these are all the things that we are going to see in this chapter. So let's start. So basically, as I told you, the transformation is a procedure which is important for the genetic recombination. Okay, when we say the genetic recombination, means that the genetic material between the two organisms is going to get exchanged. Okay, that is the particular idea about the genetic recombination. Now if we look broadly, then this genetic recombination or the DNA exchange that takes place in the bacteria is usually carried out in the three main procedures. Okay, the first procedure, if we see, is the conjugation, second one is the transduction, and one of them is also the transformation. Okay, so I will just give a brief introduction about it. I will not go into the deep what are these procedures about, as you have a whole chapters about these procedures. So I will just take you to the brief introduction. So here conjugation means what? The conjugation itself means that the genetic recombination in which the DNA is being exchanged. Okay, but when this exchange takes place, the organisms are in the close proximity. Okay, there is a contact between the organism. बाकी जो दो प्रोसेसेस है, देयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वहाँ पे जो है दो बैक्टीरिया का कांटेक्ट होना चाहिए. यहाँ पे होता क्या है कॉन्जुगेशन में? टू ऑर्गेनिजम्स कम इन अ प्रॉक्सिमिटी एंड दे एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू we can say a bridge. Okay, that is nothing but a conjugation. Okay, and the transduction means what? It is all the procedure which is taken place through the medium. यहाँ पे जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है या फिर डीएनए का जो एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू अ मीडियम, दैट इज़ द वायरस. ओके, लाइक बैक्टीरियोफाज. आपको पता होगा बैक्टीरियोफाज क्या होता है. बैक्टीरियोफाज ऐसा जो है टाइप का, आई वुड से एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बैक्टीरियोफाज. तो जो जेनेटिक एक्सचेंज और डीएनए एक्सचेंज बैक्टीरियोफाज के थ्रू हो रहा है, दैट एक्सचेंज इज कॉल्ड एज अ ट्रांसडक्शन. ओके, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ऑल द चैप्टर अबाउट. द ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक एक्सचेंज, बट यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर उनको कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, एक कंपैटिबल ऑर्गेनिज्म होता है जो क्या करता है, एनवायरनमेंट से डीएनए टेकअप करता है. ठीक है, उसके लिए सेल को सेल से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एनवायरनमेंट में से डीएनए लिया जाता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, और वो कैसे लेता है, क्यों लेता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. तो दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन. आई जस्ट गिवन यू अ ब्रीफ आइडिया कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और भी कोई प्रोसीजर्स होती है क्या जिससे डीएनए का एक्सचेंज होता है. यस, दीज आर द थ्री मेन प्रोसीजर्स जिसकी मदद से डीएनए का एक्सचेंज होता है. ठीक है, नाउ अगर हम आज के जो हमारे विषय चैप्टर के बारे में बात करें तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? जहाँ पे जो है डीएनए का डीएनए का जो है ट्रांसफ़र होता है या फिर एक जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है. इसमें क्या होता है, सेल का फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता, मतलब सेल को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे खाली एनवायरनमेंट से एक सेल अपने अंदर डीएनए लेता है, उसको अपने डीएनए के साथ मिक्सअप करता है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, यू कैन से हियर एक डीएनए है,
अब ये डोनर डीएनए, ठीक है, ये जाएगा एक बैक्टीरिया के अंदर और उसमें मिक्सअप होके, जो बैक्टीरिया कम्पिटेंट है, ठीक है, और उसमें मिक्सअप होके उसमें अडप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस होल प्रोसीजर को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब होता क्या है पहले तो, अब ऐसा नहीं कि एक ही सेल इन्वॉल्व है, यस ऑब्वियसली दो सेल इन्वॉल्व है, क्योंकि हम डीएनए इन्फॉर्मेंट से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डीएनए किसी का तो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है दो सेल यहाँ पे इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे सेल को क्लोज कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेन बात है, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि जो डोनर सेल होता है इट इज़ द वन जो लाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है उसके सेल मेम्ब्रेन वगैरह, और वो सेल एनवायरनमेंट में क्या करता है, डीएनए को रिलीज़ करता है, ठीक है। मतलब एक डोनर सेल है, ठीक है, आई वुड कॉल इट एज डी सेल, ओके। इट विल गेट लाइज, ठीक है, it will get breaked up and it will release the DNA, and that DNA in the environment will be uptaken by the another cell जिसको हम रिसीवर सेल बोलेंगे। वो इस डीएनए को लेता है जो एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया है, किसने, डोनर ने, ठीक है। अब वो किन कंडीशन में ये सब होता है हम देखने वाले हैं, लेकिन इस होल प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो आई जस्ट गिवन यू द ब्रीफ आइडिया अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ एज आई टोल्ड यू कि दो सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ अ डोनर सेल, वन इज़ द रेसिपिएंट सेल, ओके। यहाँ पे होता क्या है कि जो डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द रेसिपिएंट सेल फ्रॉम द डोनर सेल, और वो होता किस प्रोसीजर से है, बाय यूजिंग द प्रोसेस नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। ना डोनर सेल कौन सा होता है फिर, जो डीएनए देता है, ठीक है, जिसमें से डीएनए ट्रांसफॉर्म होता है, एंड द रेसिपिएंट सेल इज़ वन जो डीएनए लेता है अपने अंदर और उसको रिकम्बाइन करता है अपने क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट इट। नाउ जो चीज़ हमें आज देखनी है वो ये है कि ये जो डीएनए की जो ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी है वो कैसे हुई है। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार सुना है, सो आई डोंट नीड टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड इट इन वेरी डीप मैनर। तो यस, इट वॉज बीन डिस्कवर्ड इन 1928 बाय द साइंटिस्ट जिसके बारे में आपने हमेशा सुना है, फ्रेड ग्रिफिथ, ओके। फ्रेड ग्रिफिथ वॉज द वन जिन्होंने ये फिनोमिनॉन जो है डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने डिस्कवर किया था इट वाज इन द बैक्टीरिया नोन एज दी निमोकोकाई, जिसको हम आजकल स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी कहते हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया में इन साइंटिस्ट ने, दैट इज़ दी फ्रेड ग्रिफिथ, इन्होंने ये होल फिनोमिनॉन डिस्कवर किया था। आपको याद भी होगा एक्सपेरिमेंट 12th स्टैंडर्ड में था आपके। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, दो उनके पास स्ट्रेन थी, ठीक है, दो उसके पास स्ट्रेन थी, एक थी स्मूथ, ठीक है, राउंड वाली, एक थी रफ, ठीक है। अब स्मूथ और रफ टाइप के स्ट्रेप्टोकोकाई के उसके पास दो प्लेट है, सपोज मैं ऐसे कह रही हूँ, तो उसके पास दो बैक्टीरियल सेल्स थी, एक स्मूथ टाइप की थी, एक रफ टाइप की कॉलोनी वाली, ठीक है। अब ये एक ही टाइप के बैक्टीरिया की, ठीक है, दोनों किसकी है, स्ट्रेप्टोकोकाई की है, मतलब न्यूमोकोकाई, उस टाइप की न्यूमोकोकाई की है, ठीक है। अब न्यूमोकोकाई की एक स्मूथ, क्योंकि इसमें कैप्सूल है, ठीक है, और इसमें कैप्सूल है इसकी वजह से ये स्मूथ है, ठीक है। कैप्सूल होने की वजह से होता क्या, इसको रेजिस्टेंस मिल जाता है, इसकी वजह से ये पैथोजेनिक बन जाता है, ठीक है। और ये जो दूसरी है वो है रफ, रफ क्योंकि इस पर कैप्सूल नहीं है तो ये नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंट नहीं है इसलिए इट इज़ अ नॉन पैथोजेनिक, ठीक है। अब होता क्या है, साइंटिस्ट ने किया क्या, पहले इन्होंने क्या किया, ये स्मूथ जो स्ट्रेन है, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन वो भी लिविंग, ठीक है, इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की, वैसे की वैसे ही उन्होंने डाल दी, माइस में इंजेक्ट कर दिए स्मूथ स्ट्रेन, तो माइस जो है वो किल हो गए, ठीक है। ये पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस, इन्होंने जो है लिविंग रफ जो स्ट्रेन थी निमोकोकाई की वो माइस में इंजेक्ट की, तब माइस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, माइस स्टिल वॉज अलाइव, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक थे, एज आई टोल्ड यू, वो नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, इस स्मूथ स्ट्रेन को क्या किया, हिट किल किया, ठीक है। हिट किल करने की वजह से क्या हुआ, इसकी पैथोजेनिसिटी, इसके कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गए और पैथोजेनिसिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है।
अब उन्होंने उसको माइस में इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइस में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो पहले हीट किलिंग के पहले जो स्मूथ स्ट्रेन थी वो माइस को किल कर रही थी, लेकिन अभी जब उन्होंने हीट किल किया इस स्मूथ स्ट्रेन को और तब इंजेक्ट करने के बाद उनको पता चला कि माइस अलाइव है, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी रिमूव हो चुकी है। अब उनको लगा चलो इसको मिक्स कर देते हैं विद द रफ, किसको, द स्मूथ वन जिसको हीट किल किया है, ठीक है, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को मिक्स किया विद द रफ स्ट्रेन जो नॉन पैथोजेनिक थी। अब ये भी नॉन पैथोजेनिक है क्योंकि इसको हीट किल किया है, ठीक है। ये दोनों को मिक्सअप करके इंजेक्ट करने के बाद ऐसा पता चला कि ये माउस फिर भी किल्ड हुआ। अब ये हुआ कैसे, अब इसको तो हीट किल किया था हमने, फिर इसको क्या हो गया कि ये फिर से अलाइव हो, जो है स्ट्रेन अलाइव हो गई और माइस को इन्फेक्शन हो गया। ऐसे क्या हुआ है, तो होता ये है कि हमने जो है स्मूथ स्ट्रेन को जो है हमने मतलब उन साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल किया था, ठीक है। इसकी वजह से उसकी पैथोजेनिसिटी तो रिमूव हुई थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसकी जेनेटिक जो है फैक्टर्स है उसमें पैथोजेनिसिटी अभी भी थी। और हमने इसको किसके साथ मिक्स किया था, विद द रफ स्ट्रेन, ठीक है। अब इन दोनों के मिक्सअप होने की वजह से क्या हुआ, इसकी जो पैथोजेनिसिटी थी उसके जीन में वो उन्होंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी। इसकी वजह से ये रफ वाला जो है वो स्मूथ बन गया है, ठीक है। और स्मूथ बन के इसने इस माइस को किल किया। मतलब रफ वाला ओरिजिनली कैसा था, नॉन पैथोजेनिक, लेकिन जब हम इन साइंटिस्ट ने इसको मिक्सअप कर दिया विद द स्मूथ जो हिट किल था, नॉन पैथोजेनिक था, लेकिन उसकी जेनेटिक मटेरियल में ऑब्वियस सी बात है पैथोजेनिसिटी थी, तो वो पैथोजेनिसिटी उसके जेनेटिक मटेरियल से ट्रांसफ़र हुई इनटू द रफ स्ट्रेन और उसको उसने पैथोजेनिक कर दिया एंड माइस में सडनली इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस फिनोमेना को इन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको पता चला कि कोई तो ऐसा प्रिंसिपल है जो स्मूथ में से रफ में ट्रांसफ़र हुआ है। स्मूथ भी कौन सा, हिट किल, ठीक है, उसमें से ट्रांसफ़र हुआ इनटू द रफ और उसने उस माइस को इन्फेक्ट कर दिया और उसको किल कर दिया। फिर इस पर आगे जाके डिस्कवरी हुई और ये पता चला, अब डिस्कवरी किसने किया आपको ये भी पता होगा, एवरी मैक्लॉयड ने। और उनको पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये कोई प्रोटीन नहीं है, कोई आरएनए नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है डीएनए। मतलब सीधा साधा डीएनए जो है ये स्मूथ में से ट्रांसफ़र हुआ था रफ में और उसने रफ को भी पैथोजेनिक कर डाला, ठीक है। और इसी वजह से उस रफ वाले ने उस माइस में इन्फेक्शन कॉज किया एंड माइस वॉज किल्ड। ये फिनोमेना फाइनली प्रूफ हो चुका था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कौन है, फिर द डीएनए इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ओके। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करता है, क्या करता है, अब ये भी ग्राम पॉजिटिव में कैसे करता है, ग्राम नेगेटिव में कैसे करता है, ये हम सब चीज़ें देखने वाली, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने सीखा, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि सभी में होता है, ठीक है, सब टाइप के बैक्टीरिया में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट ऑकर इन ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये टाइप का प्रोसीजर होता है। एंड यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर। होता क्या है कि अब ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होना या ना होना, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। पहली चीज़ तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन सभी सेल्स में या सभी टाइप के बैक्टीरियाज में नहीं होता, कुछ सिलेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, कुछ सिलेक्टिव टाइप के बैक्टीरियाज में होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ तो नेज़ेरिया गोनेरी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी है, या फिर बैसिलस सबटिलिस है। ऐसे कुछ इकोलाई में नहीं होता, ठीक है। ऐसे कुछ सिलेक्टिव टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, जिनमें पर्टिकुलरली ये टाइप का प्रोसीजर होता है ऑफ द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आपको कि बाकियों में क्या होता है फिर रिकॉम्बिनेशन होने के लिए, तो बाकियों के लिए और ऑप्शन से, कुछ ट्रांसडक्शन से करेंगे, कुछ कॉन्जुगेशन से करेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अब होता ये है कि ये प्रोसीजर जो है होने के लिए कुछ कंडीशंस लगती है, ठीक है। अब ऐसा पाया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है सेवियर कंडीशंस में होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, अब उसमें हुआ ये है, अब ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, किन में होता है। तो सपोज उनमें से एक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई में हुआ ये कि
यूवी रेडिएशन की वजह से उसमें डाइमर फॉर्म हो चुका है, उसमें डीएनए डैमेज हो चुका है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में उसका डीएनए कुछ काम कर रहा नहीं है, तो उसको चाहिए कि कुछ अच्छा डीएनए मिल जाए उसको, ताकि वो सर्वाइव करे। तो वो करेगा क्या कि एनवायरमेंट में से जो है डीएनए लेगा, खुद में इनकॉर्पोरेट करेगा हेल्दी डीएनए, और वो सर्वाइव हो जाएगा। तो ऐसे स्टेजेस में भी ये होता है, एज वेल एज जो है, जैसे मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताया पैथोजेनिसिटी। जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन होती है उनको पैथोजेनिक करने में भी इस प्रोसेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा सर्टन कंडीशंस में लाइक आई वुड से लाइक वो बैक्टीरिया जो है वो स्टेशनरी फेज में है, मतलब उसकी जो सेल डेंसिटी है इट इज़ अराउंड 10⁶ to 10⁷ सेल्स पर ml। तो अगर उसकी डेंसिटी ऐसी है या फिर वो स्टेशनरी फेज में है, लैटर फेज ऑफ ग्रोथ में है, तो उसमें भी वो सेल ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, ठीक है। तो आपको दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि सभी बैक्टीरिया में होता नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्टिव टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर में जो है एक चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, विच इज़ द कंपेटेंस, ठीक है। ये नया वर्ड है कंपेटेंस। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्ड पता है तो आपको कंपेटेंस वर्ड पता होना ही चाहिए, ठीक है। कंपेटेंस मतलब क्या, ठीक है। बाहर डीएनए प्रेजेंट है, ये रेसिपिएंट सेल भी है, डोनर सेल भी है, लेकिन ये रेसिपिएंट सेल कितना ज़्यादा एबिलिटी रखता है कि वो उस डीएनए को अपने अंदर ले सके, उस चीज़ को बोला जाता है कंपेटेंस। कंपेटेंस मतलब क्या, ये जो रेसिपिएंट सेल है ना, इतनी आसानी से थोड़ी वो डीएनए लेने वाला है, उसमें भी कुछ चेंजेस होने ज़रूरी है तभी वो डीएनए ले पाएगा। तो यही चेंजेस वो कितने अच्छे से करता है, कि वो कितने अच्छे से वो डीएनए लेता है, उस एबिलिटी को बोला जाता है कंपेटेंस। कंपेटेंस किसकी एबिलिटी है, रेसिपिएंट सेल की, टू टेक द डीएनए, ठीक है, नॉट डोनर सेल। डोनर सेल अपना काम कर चुका है, उसने डीएनए को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया है। अब ये रेसिपिएंट के ऊपर है कि वो लेता है कि नहीं, और उसके एबिलिटी को कहा जाता है कंपेटेंस, ठीक है। अब कंपेटेंस इज अ एबिलिटी ऑफ सम बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए, पर्टिकुलर आई एम सेइंग नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोग्राम है, कोई भी बैक्टीरिया ऐसे ही कंपेटेंट नहीं होने वाला, मतलब रेसिपिएंट है, चलो मुझे डीएनए की ज़रूरत है तो चलो मैं ऐसे ही ले लूँगा डीएनए, ऐसा नहीं होता। इस होल प्रोसीजर में जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। ये जो जीन्स होते हैं, एक आई वुड से एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड टाइप ऑफ द प्रोसीजर है, ये बहुत सोच समझ के की जाती है बैक्टीरिया में। उसके लिए कुछ जीन्स लगते हैं, कुछ उन जीन्स के प्रोटीन्स लगते हैं, और उन प्रोटीन की मदद से जो पूरा प्रोसीजर होता है कि डीएनए आया, फिर वो अंदर जाएगा, फिर वो सेटल हो जाएगा, फिर रिकम्बाइन हो जाएगा, इसके लिए जीन्स लगते हैं, ठीक है। इतनी आसानी से नहीं आता, उस पूरी चीज़ को बोला जाता है कंपेटेंस, ठीक है। एक कुछ 40 अराउंड जीन्स लगते हैं इस होल प्रोसीजर को होने के लिए, ठीक है। डजन्स ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व, एंड कुछ रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी जीन्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी जीन्स मतलब इस जो पूरी प्रोसीजर है उसको होने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब क्या, अच्छे से ये प्रोसीजर हो जाए, उस डीएनए का जो है स्ट्रक्चर इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाए, अच्छे से अडाप्ट हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखने वाले कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट ये सब जो प्रोसीजर है ट्रांसफॉर्मेशन के, इट इज़ जेनेटिकली प्रोग्राम्ड काइंड ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। होल एंड होल प्रोसीजर जीन्स और उसके प्रोटीन की मदद से होती है। वो कैसे होती है, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। जनरल स्टेप तो सेम ही होते हैं दोनों में, ग्राम पॉजिटिव में भी ग्राम नेगेटिव में भी। आपके जो सिलेबस है उसमें दिया गया है कि ग्राम पॉजिटिव में कैसे होता है, ग्राम नेगेटिव में कैसा होता है। तो जनरली दोनों में प्रोसीजर एक सेम ही है, बस खाली जो प्रोटीन्स यूज़ होते हैं वहाँ पे वो डिफरेंट होते हैं। मतलब स्ट्रक्चरली हम अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो है एक फ़र्क है कि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, विच इज़ नोन एज दी सॉरी आउटर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर जो है वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं प्रेजेंट होती, उसकी वजह से होता ये है कि
थोड़े एडिशनल प्रोटीन्स लगते हैं ग्राम नेगेटिव में, और हाँ डिफरेंट प्रोटीन्स लगते हैं। पहली चीज़ तो ये, भले उनका रोल सेम है लेकिन प्रोटीन्स के नाम अलग अलग है, ठीक है। रोल बाकी सेम है तो आपको ज़्यादा इतना कठिन नहीं जाएगा टू रिमेंबर दिस थिंग्स, जस्ट इज़ दैट कि उनके नेम्स अलग है, ठीक है। अब वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी। अब मैं आपको एक आई वुड से एक बेसिक प्रोसीजर बताऊंगी कि होता क्या है जनरल प्रोसीजर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक जनरल प्रोसीजर क्या है वी आर गोइंग टू स्टडी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एज आई टोल्ड यू कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ठीक है, डोनर सेल ने लाइज होके एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डीएनए रिलीज़ कर दिया है। वो डीएनए एनवायरनमेंट में से किसी सेल को उसकी ज़रूरत है तो वो आ जाएगा और उस सेल में इनकॉर्पोरेट होके सेटल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ओवरऑल प्रोसीजर बताई। अब इससे भी थोड़ी सी डीप में आपको प्रोसीजर बताती हूँ होता क्या है। तो पहली चीज़ तो होता ये है, ठीक है, पहला जो डोनर सेल है, ठीक है, ओके आई विल टेक डिफरेंट कलर, ठीक है। अब ये डोनर सेल है, ठीक है। अब इसने क्या किया, लाइज हुआ ये, एंड इसने जो है रिलीज़ किया डीएनए, ठीक है, ओके आई टेक डिफरेंट कलर। इसने डीएनए रिलीज़ किया, ठीक है। अब ये डीएनए इस सेल को लेना है, ठीक है। अब इसने कुछ ऐसे कंपेटेंट फैक्टर्स ऐसे रिलीज़ किए जिससे होगा क्या, ये एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर, मतलब ये खुद ही रिलीज़ करेगा उन फैक्टर्स को और खुद ही को एक्टिवेट कर देगा ताकि ये अंदर जो है पूरी मशीनरी सेटअप हो जाए, ठीक है। अब उसको डीएनए मिल चुका है, ठीक है। डीएनए मिलने के बाद ये डीएनए जो है इसके पास आएगा, ठीक है, किसके पास, टू द डोनर सॉरी रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल का डीएनए आ गया रेसिपिएंट सेल पे, इस पे कुछ रिसेप्टर्स होंगी, ठीक है, जिस पे ये डीएनए जाके बाइंड होगा, ठीक है। अब ये डीएनए जो है बाइंड हुआ, अब होगा क्या, ये जो बाइंड हुआ डीएनए है वो कुछ प्रोटीन्स की मदद से अंदर घुस जाएगा, फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन टू दी पेप्टिडोग्लाइकेन टू द इंटरनल लेयर, ऐसे करके वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर घुस गया तो पूरा अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे होगा क्या, इसका पूरा की पूरा अंदर नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगी न्यूक्लियस, ठीक है। वो क्या करेगी, ये जो डीएनए जो हाफ अंदर आ चुका है अब उसको पूरा अंदर आना है, लेकिन उससे पहले ये न्यूक्लियस एंजाइम थोड़ा सा अपना काम करेगी। ये उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ये पहले कौन सा था, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड था, लेकिन यहाँ पे वो न्यूक्लियस की मदद से अंदर आने के बाद, थोड़ा सा अंदर आने के बाद, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर आने के बाद इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड में इसको कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है, अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को, अब हम जो है जनरली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसलिए लिया जाता है ताकि एक सिंगल स्टैंड से अंदर दूसरा डीएनए भी दूसरा स्टैंड सिंथेसाइज किया जा सकता है, तो हमें बस एक सिंगल स्टैंड चाहिए, ठीक है। वो भी कैसा, जो डीएनए अंदर का, ठीक है, जो सेल का अपना डीएनए उससे मिलता जुलता स्ट्रैंड चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमने स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमें चाहिए, दूसरा स्ट्रैंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो उसको ये जो न्यूक्लियस है वो डिग्रेड कर देगी। अब डिग्रेड होने के बाद ये जो सिंगल स्ट्रैंड है वो भी अंदर आ जाएगा, ठीक है। अंदर आने के बाद उस पर जो है, अब हो सकता है यही न्यूक्लियस एंजाइम पूरे डीएनए को भी डिग्रेड कर सकती है, या फिर कोई और एंजाइम्स हो वो भी पूरे डीएनए को डिग्रेड कर सकती है, इसलिए यहाँ पे इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेल के अंदर आने के बाद डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बाइंड हो जाते हैं ताकि ये सेल्स न्यूक्लियस से बच सके और उसको कुछ डैमेज ना हो, ठीक है। अब ये डीएनए अंदर आ गया, उसके बाद ये जाएगा टू दी क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम किसका है, रेसिपिएंट सेल का, तो उस क्रोमोसोम के पास जाएगी। अब उसके डीएनए में इसको मिक्सअप होना है, ठीक है। एक तो साइट स्पेसिफिकली मिक्स हो जाएगी, मतलब किसी पर्टिकुलर साइट पे वो जाके बाइंड होगा, या फिर नॉन स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होगा, मतलब रैंडमली कहीं पे भी जाके बाइंड हो जाएगा। या फिर इसके अलावा एक और प्रोसीजर यहाँ पे की जा सकती है कि एक जो स्ट्रैंड है, ठीक है, उसको डिग्रेड किया जाता है, जो क्रोमोसोम का दूसरा स्ट्रैंड है उसको डिग्रेड करके, किसका, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेसिपिएंट सेल, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो रेसिपिएंट सेल है, उसमें अपना जो बाहर का डीएनए वो आ चुका है, ठीक है, ये उसका अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। एक तो ये अपना अपना काम करेगा, एक सेपरेट प्लाज्मिड के जैसे बन जाएगा, अपना अलग दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज करके वहीं पे रह जाएगा, या फिर इसमें अलग से घुस जाएगा साइट स्पेसिफिकली या फिर नॉन साइट स्पेसिफिकली, ठीक है। या फिर करेगा क्या
कि इस प्लाज्मिड का जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको डिग्रेड करेगा और इसकी जगह अपना नया स्ट्रैंड जो है, ओके, मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, सॉरी, अपना स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे एज अ हेटेरोलॉगस स्ट्रैंड बैठ जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि वो स्टैंड लेते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि ये अंदर के स्टैंड से थोड़ा सा मिलता जुलता चाहिए ताकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाए। तो यस, इट विल गेट टू स्टे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो ऐसे मिक्सअप हो सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रोसीजर के थ्रू ये जो स्ट्रैंड है, जो बाहर का डीएनए था, वो जो रेसिपिएंट सेल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इजीली सेटल डाउन हो जाता है। ये होती है जनरल प्रोसीजर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। इसको हम डिटेल में देखेंगे कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, ग्राम निगेटिव में कौन से होते हैं। हम ये सब चीज़ें देखने वाले कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव में। हम वो दोनों चीज़ें स्टडी करने वाले इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ यू अंडरस्टूड दैट कि हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखा, हमने जो है we understood the basic transformation procedure, we understood what is transformation and what are the different techniques or the different ways through which the DNA is exchanged between the bacterial cells. Also we have learned how the transformation is been discovered. Also we have seen the बेसिक प्रोसीजर अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कॉन्जुगेशन के बारे में भी स्टडी किया कि नॉट कॉन्जुगेशन सॉरी कंपेटेंस के बारे में भी स्टडी किया कि कंपेटेंस होता क्या है एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में इन द नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि हाउ द कंपेटेंस इज जनरेटेड बिटवीन द इन द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव organisms, as well as how the transformation actually occurs in the gram positive and gram negative organisms. Okay, so these are some points जो हम next lecture में देखेंगे and after that we will see how this transformation is been employed for the genetic mapping also. ठीक है, for now let's stop here and I hope you understood this lecture. Kindly do comment your queries and doubts in the comment section or either ask me personally. Okay, thank you and keep watching.